میرا نام عمر ہے۔ میرے محلے میں کریانے کی دکان تھی۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا جس کی پڑھائی بہت جلد ہی چھوٹ گئی اور اسے دکان پر بٹھا دیا گیا، لیکن مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو دیکھتا تو میرا دل مچلنے لگتا تھا۔ مجھے ساری لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، بس سوچتا تھا کہ جلدی سے مجھے کوئی بیوی مل جائے اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، میرے بچے ہوں، اپنا گھر ہو، بس یہی میرا خواب تھا۔ اسی وجہ سے میرا تعلیم میں بھی دل نہ لگا، لیکن میری کریانے کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی۔ گھر کا خرچ بھی اٹھاتا اور میری جیب بھی پیسوں سے بھری رہتی تھی۔ ماریا ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں کسی کو بھی پاگل بنا سکتی تھی، اور میں تو بچپن سے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کہیں کھو سا جاتا تھا۔ اسے اپنی دکان سے مفت چیزیں اٹھا کر دیا کرتا تھا۔ جب انسان محبت میں نفع اور نقصان بھی بھول جائے تو اسے سچی محبت ہو چکی ہوتی ہے، اور میری یہ محبت تو کئی سال پرانی تھی، اور میری بچپن کی دوست بھی۔ ہم دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جوں جوں بڑے ہوتے گئے ہم دونوں کے درمیان فاصلے بھی بڑھنے لگے۔ وہ پردہ کرنے لگی تھی، اب تو اسے دیکھے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی میری دکان پر آتی نقاب میں ہی آتی تھی۔ میں اسے کہتا بھی تھا کہ اپنا چہرہ دکھا دو تو کہنے لگتی تھی کہ میں کیوں اپنا چہرہ دکھاؤں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بدتمیز بھی ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اب بھی پسند کرتی ہے، لیکن اب ہم پہلے کی طرح کھل کر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ لیکن ماریا کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، ایسا مسئلہ کہ جس کی وجہ سے محلے کے باقی لڑکے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ میرے لیے بات بہت اچھی تھی کیونکہ میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن میں بھی دل ہی دل میں پریشان ہوتا تھا کیونکہ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے مستقبل میں بہت سے مسائل بن سکتے تھے۔ میرے ماں باپ کو اگر یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ کبھی بھی ماریا کے لیے نہ مانتے۔ اس کو بچپن سے عجیب و غریب دورے پڑتے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ پہلے پہل تو کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ جب بھی کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا تھا وہ ایسا ہی رد عمل پیش کرتی تھی۔ پر جب سب لوگ ہی کچھ نہ سمجھ سکے تو انہوں نے سب سے آسان کام کیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی ہوائی معاملہ ہے۔ محلے والوں نے ماریا کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس لیے ماریا کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتہ چلتا کہ ماریا پر آسیب کا سایہ ہے تو اس کے گھر بھی کبھی نہیں جاتا تھا۔ یہ بات بھی میرے حق میں تھی کیونکہ اس طرح اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، ورنہ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی اب تک کسی نہ کسی کے نکاح میں جا چکی ہوتی، اور ہم کیا کر لیتے۔ ماریا کے والدین نے اسے بہت سارے ڈاکٹرز اور عاملوں کو دکھایا، لیکن اس کے دورے ٹھیک نہ ہو سکے، اور کم از کم ہر مہینے ایک آدھ بار اسے دورہ پڑتا رہتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی اس کو ایک بہت بڑا دورہ پڑا۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے، اسے ڈاکٹرز اور عاملوں کے پاس لے گئے، پھر بڑی مشکل سے اس کی حالت سنبھلی۔ ایک بار تو ایک بہت بڑے عامل کو بلایا گیا، اس نے ماریا کے ساتھ اکیلے میں 5 منٹ نہیں نکالے کہ کمرے سے چیخے مارتا ہوا باہر آیا۔ سب اس کی طرف لپکے کہ کیا ہوا؟ توبہ توبہ، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اپنی اس بیٹی کو کہیں چھپا دو، اس کی کسی سے شادی نہیں کرنا ورنہ اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے ایسا بھاگا کہ جیسے اس کی جان پر بنی ہو۔ بس اس واقعے کے بعد جس کو بھی ماریا کی حالت کے بارے میں معلوم نہ تھا اسے بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے والدین اکثر پریشان رہتے، اگر اس کی یہ حالت برقرار رہی تو کوئی اس سے شادی ہی نہیں کرے گا۔ میری ماریا کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کو بہت چاہتا تھا، اور ہم کبھی کبھار گلیوں میں چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے، یا اگر کبھی ملنے کا موقع نہ ملتا تو ہم ایک دوسرے کو چھتوں پر خط لکھ کر رابطے میں رہتے۔ جس طرح میں ماریا سے محبت کرتا تھا بالکل ویسے ہی وہ مجھ سے بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ لیکن یہ لڑکی کچھ عجیب سی تھی، کبھی بھی میری سیدھی بات کا سیدھا جواب نہ دیتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس کرواتی تھی کہ جیسے مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن میرے لیے بے چین بہت رہتی تھی۔ جب کبھی بھی ہم نہیں ملتے تھے تو یہی کہتی رہتی کہ کب ملنا ہے، کچھ کرو، مجھ سے مل جاؤ، اور جب میں کسی طرح ملنے کی راہ نکال لیتا تو وہ سیدھے منہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے مجھ سے ناراض ہونا پسند تھا۔
शायद ये इसकी अदाएं थीं, लेकिन ये अदाएं कुछ अजीब सी थीं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही अजीब। मैं उलझा हुआ था कि सारी ज़िंदगी इसके साथ कैसे गुजारूंगा। इसका तो पता नहीं चलता कब इसका मूड अच्छा होता है और कब बुरा। सोच में पड़ा रहता था, लेकिन इसकी खूबसूरती के आगे हार चुका था। वो जैसी भी थी, बस मुझे वो मेरी दस्तरस में चाहिए थी, क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं जल्द ही मारिया के रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को उसके घर भेजने वाला था, लेकिन मेरे रिश्ता भेजने से पहले कुछ और लोग उसका रिश्ता लेने चले गए। वो लोग इसके जन्नात और आसेब वाली बातों से लाइल्म थे। ये लोग बहुत अमीर और थोड़े बर्गर टाइप के थे। मारिया के हुस्न के आगे ऐसे ही गर्विदा हो गए, जैसे बस यही सोच रहे हों कि अच्छी बहू लेकर जाएंगे तो सब हमारी वाह वाह करेंगे। लड़के के माँ बाप प्यारी और खूबसूरत लड़की की तलाश में इसलिए होते हैं, वरना उनको क्या मतलब लड़की की खूबसूरती से। मारिया के वालिदैन खुश थे कि कम से कम बेटी का रिश्ता हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और मारिया के वालिदैन ने भी मारिया की आसेब वाली बात लड़के वालों से छुपाए रखी। मैं और मारिया बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मैं उसको खोना नहीं चाहता था। उसके वालिदैन ने जल्द ही शादी का फैसला किया और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी थी। जाहिर है वो देर नहीं करना चाहते थे। इस बीच में वालिदैन से जब उसके लिए बात की तो उन्होंने कहा कि हम किसी पागल लड़की को अपने घर नहीं लाने वाले। आजकल की लड़कियां तो वैसे ही इतनी तेज़ हैं कि अपने सास ससुर का जीना हराम कर देती हैं। ऊपर से हम पागल बहू को ले आए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वो तो हमें जान से ही मार डालेगी। हम चाहे सारी ज़िंदगी कंवारे बैठे रहो, लेकिन हम इस लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करवाएंगे। अपनी हद में रहो और दोबारा इस लड़की का नाम भी ना लेना। वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, जाओ उसकी शादी में, उसको रुखसत करो, लेकिन उसको इस घर में लाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। मुझे तो मेरे माँ बाप ने साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसा करने के बारे में सोचूं भी नहीं, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मैं कैसे उसे किसी और का होते हुए देख सकता था। जूं जूं मारिया की शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं और मैं गली से बाहर खड़े होकर उसको देखता रहता। और फिर वो दिन भी आ गया कि जिस दिन उसका निकाह था। मेरी हालत ख़राब थी। मारिया की शादी का कार्ड मुझे भी मिला था और मैं उसका निकाह अटेंड करने चला गया। मारिया मुझे अपने निकाह में देखकर नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें आज मेरा दूल्हा बनना था और तुम यहाँ टेंट लगवा रहे हो, कमीने। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरे बस में कुछ नहीं था। दूल्हा स्टेज पर आ गया। मौलवी ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। मैं सब कुछ खामोशी और बेबसी से देखता रहा। निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि हम सब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐन वक्त पर यह सब हो जाएगा। निकाह शुरू होने से 2 मिनट पहले मारिया को जिन्नात का शदीद दौरा पड़ा। उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगी। सब लोग हैरानगी से उसको देखते रहे। फिर उसने मौलवी का गिरेबान पकड़ा और भी कई लोगों को मारने लगी। कुछ लोग वहाँ से भाग गए। मौलवी भी जल्दी जल्दी भाग गया। ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती रही। लड़के वालों को जब पता चला कि इस पर जन्नात का साया है और उसे अक्सर ये दौरे पड़ते रहते हैं, तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग गए। अब घर में सिर्फ मारिया और उसकी फैमिली खड़ी थी। मैं भी खामोशी से खड़ा सब देख रहा था। मारिया के वालिदैन परेशानी से सर पकड़कर बैठ गए। अब उसकी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। अब तो कभी इससे कोई शादी नहीं करेगा। उस वक्त मैं आगे बढ़ा और मारिया के वालिदैन के पास चला गया और उनको हौसला देते हुए कहा, आप लोग फिक्र ना करें, मैं मारिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात पर उसके वालिदैन खुश होकर मुझे दुआएं देने लगे। उस वक्त मौलवी को फिर से बुलाया गया और उसने हम दोनों का निकाह पढ़वा दिया और वो मेरी बीवी बन गई। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैं इतना खुश था कि बता नहीं सकता। जो बात मुझे 4 मिनट पहले नामुमकिन लग रही थी, अब वो मुमकिन हो चुकी थी। लेकिन फिर वहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसा हो गया कि एक तूफ़ान के बाद दूसरा तूफ़ान आ गया। मारिया मेरे साथ मेरी बीवी बनकर बैठी थी। मेरे दिल ही दिल में खुश था कि जैसे भी हुआ हम दोनों एक दूसरे से मिल ही गए और तमाम उम्र हमेशा साथ रहेंगे। मेरे माँ बाप को ये खबर मिली तो वो भी वहाँ आ गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो स्टेज पर दूल्हा बना बैठा है और उससे शादी कर ली है, जिस पागल लड़की से हम कभी शादी नहीं करवाना चाहते थे। मेरी माँ तो साकिन होकर एक तरफ बैठ गई और मेरे बाप ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी।
लेकिन अब क्या हो सकता था, निकाह हो चुका था, वो मेरी बीवी बन गई थी। मारिया के बाप ने मेरे बाप को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा तो काबू में नहीं आ रहे थे, पर मुझे इससे कोई मसला नहीं था क्योंकि मैं बहुत खुश था। फिर अचानक से मारिया ने मुझे भी गिरेबान से पकड़ा और धक्का देकर स्टेज से नीचे उतार दिया। मैंने इसको निहायत ही हैरान होकर देखा और पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? जाने उसे क्या हुआ था कि क्या कर रही हो। वो बुरी तरह बफर चुकी थी और मेरा गला दबाकर मुझे मार देना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि मारिया को किसी भी तरह के दौरे नहीं पड़ते थे। सच तो ये है कि इस पर किसी जिन्नात वगैरह का साया नहीं था और ना ही कभी उसे दौरे पड़ते थे। वो एक ड्रामेबाज लड़की थी और बचपन से ही जिद्दी थी। अपनी बात मनवाने के लिए वो झूठ मूठ वाले दौरे पड़ने का ड्रामा करती थी ताकि सब उसकी बात मान जाए। जब भी कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो इसी तरह जिन्नात का दौरा पड़ने का नाटक करके अपनी मर्जी करवाती और शादी के दिन भी उसने यही ड्रामा किया था। मैं बचपन से ही उसके इस दौरे वाले सारे ड्रामे से वाकिफ था। आज वो मेरी बीवी बनी थी। हम दोनों एक दूसरे से इतनी ही मोहब्बत करते थे। ये सब हम दोनों का प्लान था। वो ये नाटक बचपन से कर रही थी और अब उसका आखिरी हिस्सा अदा करना था। लेकिन अब तो हमारा उससे निकाह हो चुका था, सब कुछ ठीक था। फिर उसने दोबारा से ये नाटक क्यों शुरू कर दिया था? लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में देखकर मुझे लग रहा था कि वो ये ड्रामा नहीं कर रही थी, जैसे वो मुझे जान से मारना चाहती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे उसकी दस्तरत से बचाया गया और एक साइड पर ले गए और उसको उसके माँ बाप घर ले गए और थोड़ी देर बाद मुझे बताया कि वो सो गई है। मेरे माँ बाप मारिया के घर में ही मौजूद थे। उनका कहना था कि इसे अभी तलाक दो, हम इसे कभी भी अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन मारिया के माँ बाप की हालत देखकर मेरे माँ बाप का दिल भी पिघल गया। मेरी हालत क्या थी मैं ही जानता था। मैं बस इंतज़ार में था कि मारिया को होश आ जाए और मुझे उसके साथ कुछ वक्त मिल जाए। मैं उससे पूछूंगा कि ये ड्रामा क्यों कर रही है। जब सारा कुछ ठीक हो गया है तो अब उसे ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बताया गया कि वो होश में आ गई है। मैं फ़ौरन उसके कमरे की तरफ लपका, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं जाओगे। वो तुम्हें जान से मारना चाहती थी और अब तुम अंदर जाना चाहते हो, वो भी अकेले। हम सब भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मुझको उससे कोई बात करनी है, वो मेरी बीवी है, मैं उसे समझा लूँगा। मैं कमरे में आया तो वो बैठी रो रही थी। मैंने उसे जाकर डांटना शुरू कर दिया कि एक पल को भी उसका लिहाज ना किया कि वो पहले से ही रो रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, सारा कुछ ठीक था, फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने तो मुझे मार डाला था, मेरा गला दबा रही थी मेरे माँ बाप के सामने। अब वो तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकारी हो गए हैं। सारा कुछ ठीक था, फिर ये सब क्या हो गया? कहोगे ये सब ड्रामा था, पर सब नहीं समझेंगे। लेकिन जिस तरह की तुमने एक्टिंग की है, ड्रामा बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्या चाहती हो तुम? देखो मारिया, तुमने बहुत रायता फैला दिया है। अब ये सब मैं कैसे ठीक करूँगा? तुमने अपनी और मेरी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना डाला है ताकि हम इनके दिल से ये बात निकाल सकते कि तुम पागल हो और सब कुछ ठीक है। पर तुमने तो उनके सामने ही उनके बेटे पर हमला कर दिया। तुम सोच सकती हो कि इस सब का अंजाम क्या होगा? मारिया रोने लगी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया कि मेरा हाथ थाम लो। मैंने तंज और गुस्से में कहा कि रहने दो, नहीं तो तुम मेरा गला दबा दोगी। वो मज़ीद रोने लगी। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया था? अब मैंने मोहब्बत से पूछा। तब उसने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भला मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों करूँगी? मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया था। मुझे भी मेरी अम्मी ने सब कुछ बताया है कि मुझे सच सच कोई दौरा पड़ गया था, कि मुझे सज़ा तो नहीं मिली क्योंकि मैं दौरा पड़ने की एक्टिंग करती रही हूँ, और अब सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा और इससे पूछा कि तुम सच बताओ, तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया? उसका कहना था कि मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ कुछ याद है, लेकिन मुझे पूरी बात याद तक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं झूठ बोला करती थी। वरना तुम ही सोचो, जब हमारा प्लान कामयाब हो गया तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? मारिया को हमने उसके घर में ही छोड़ा और मुझे मेरे माँ बाप घर ले गए। मेरे माँ बाप ने मेरी खूब बेइज्जती की, लेकिन उनके कदमों में गिर गया और उनको बताया कि हम उसका इलाज करवाएंगे।
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप भी मेरे सामने मजबूर हो गए थे। अगले दिन मेरे माँ बाप मारिया को लेने के लिए चले गए। मैंने मारिया को कहा कि खुद पर काबू रखना और कोई हरकत ना करना। उसका कहना था कि मैं खुद से ऐसा कुछ नहीं कर रही, ये खुद ब खुद ही हो रहा है। वो मेरे घर आ गई तो मैं उसके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर को उसकी हालत बताई और डॉक्टर को हमने पुरानी हरकतें भी सच सच बता दी। डॉक्टर तो हैरान और परेशान रह गया। उसने कहा कि आपके साथ मकाफाती अमल हुआ है। सादा ज़बान में आपको बात समझा रहा हूँ, आपने जो किया वो आपके साथ हो गया है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि जब इंसान अपने दिमाग को कुछ समझाता है कि मैं इस तरह कर रहा हूँ और एक्टिंग करता है, तो कभी कभी उसका दिमाग इसी डगर पर चल पड़ता है। आपकी बीवी कई साल को 14-15 साल से एक्टिंग कर रही है, उसको दौरे पड़ते हैं। उसने अपने दिमाग की प्रैक्टिस करवा दी है। आप किसी पीर बाबा के पास जाएं तो कहिएगा कि उसने पहले ड्रामा किया और अब इस पर सच में जन्नात की हाजिरी हो रही है। आप मेरे पास आए हैं, मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को धोखा दिया और उनका दिमाग इसी तरफ चल पड़ा है। मैंने डॉक्टर को कहा कि इसका इलाज क्या है, तो उसने कहा कि इसका इलाज है, दवाओं से भी इलाज किया जाएगा और आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा और उनको ये बात सबको सच सच बताना होगी ताकि ये बात इनके दिमाग और ख़ानदान के हर इंसान के दिमाग से निकल जाए और दोबारा इस बात का जिक्र भी ना किया जाए। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि हम लोग ये सब ड्रामा कर रहे थे, लेकिन अब हम इसके बारे में सबको बताना चाहते थे। मैंने ये बात मारिया को बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि मैं सबको ये बात सच सच बता दूंगी, फिर चाहे वो मेरे से कोई रिश्ता भी ना रखें, क्योंकि मैं पागलों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने सबको सब कुछ बताया तो उसके माँ बाप बहुत परेशान और उसे बहुत बातें सुनाने लगे। ज़िंदगी भर तुमने हमें जलील किया और इस रिश्ते से इनकार के भी हमें सबके सामने रुसवा किया। हम तुम्हारे लिए मर गए और हमारे लिए कभी हमारे पास वापस ना आना। मारिया के माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मेरे घर वाले भी बहुत बरहम हो गए। उन्होंने उसे ड्रामेबाज कहना शुरू कर दिया। मेरी माँ और बाप भी मारिया को दिन रात ताने देते, उसे बातें सुनाते। मैं सोचने लगा कि अगर वो ऐसे माहौल में रहेगी तो मज़ीद बीमार हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के माहौल में तो अच्छा भला इंसान भी पागल हो जाएगा। तब मैंने एक फ़ैसला किया और इस पर अमल करने का इरादा कर लिया। मैंने मारिया को अलग घर में रख लिया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे मौजूद थे कि मैं ऐसा कर सकता था। मैंने मारिया का इलाज करवाया, उसकी हिम्मत बंधवाई, क्योंकि मैं भी इस सब में बराबर का हिस्सेदार था, क्योंकि मैं भी ये सब कुछ जानता था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने लगा। मारिया की हालत ठीक होने लगी थी। सब कुछ इतना आसान नहीं था। अपनी ज़िंदगी के इस वाक़े से मैंने यही सबक हासिल किया कि हमें अपने माँ बाप और माशरे के साथ इस तरह के ड्रामे नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर हमें उनकी सज़ा भी मिलती है। कभी भी किसी को भी अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।